Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 11.1 of mensuration. Here is the first question. A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has the larger area? एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल की शेप में फील्ड है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो हमें बताना है इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है. Now perimeter means length of the boundary, and in square the area perimeter of the square is 4 into side and the side is 60 meter. So the perimeter of this first figure is 4 into side, that is 4 into 60, 240 meter. Here second is a rectangle, and in rectangle the perimeter is twice length plus breadth. So this twice length plus breadth is equal to the perimeter of a square. It is given, so we can put it equal to 240. Length is 80 meter, so in place of length we write 80 plus b equal to 40. This 2 is multiplying here, so transfer it on the other side, right side, then it will divide 240, and 240 divided by 2 becomes 120. So b equal 120 minus 80, that is 40 meter is the breadth of this rectangle. Now we will find the area of both the figures. Area of square is side square, so it becomes 60 into 60, that is 3600 meter square, and area of rectangle is length into breadth. Length is 80 meter and breadth we have found 40 meter, so the area of rectangle is 80 multiplied by 40, that is 3200 meter square. So we can say that area of first figure, that is of square, is greater than the area of second figure, that is rectangle. Next question. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurements as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. Mrs. Kaushik के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट 25 मीटर बाय 25 मीटर है. उसे वो इस प्लॉट के सेंटर में एक घर बनाना चाहती है जिसकी डायमेंशंस हैं 20 मीटर बाय 15 मीटर, और इस घर के चारों तरफ वो गार्डन डेवलप करना चाहती हैं. ये जो पोर्शन है यहाँ वो गार्डन डेवलप करना चाहती हैं, and the rate of developing the garden is rupees 55 per meter square. So we have to find what is the total cost of developing this garden. इस गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना खर्चा आएगा. इसका मतलब हमें गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा पहले, और इस गार्डन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद द एरिया ऑफ गार्डन. एंड प्लॉट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, so its area is side square, that is 25 meter by 25 meter, 625 meter square. House is in the form of rectangle, and area of rectangle is length multiplied by breadth, so it is 20 meter by 15 meter, that is 300 meter square. Now their difference to find the area of garden. Area of garden is area of plot minus area of house, that is 625 meter square minus 300 meter square, so you get 325 meter square. Now 1 मीटर स्क्वायर गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, 55 रुपीज़. इसलिए 325 मीटर स्क्वायर गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना खर्चा आएगा, 325 मल्टीप्लाइड बाय 55 रुपीज़, that is 17,875. Next question. The shape of garden is rectangular in the middle
and semicircular at the ends as shown in the figure. Find the area and perimeter of the garden. एक गार्डन जो रेक्टेंगुलर शेप में है सेंटर से और एंड्स पर उसके सेमी सर्कल की शेप है. इस रेक्टेंगल की लेंथ 20 मीटर है और इस सेमी सर्कुलर पार्ट का डायमीटर ये हो गया 7 मीटर. तो जो इसका डायमीटर है वही इसकी रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी. हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना और पैरीमीटर मीन्स बाउंड्री. तो बाउंड्री में ये तो लेंथ ऐड हो रही है रेक्टेंगल की और सेमी सर्किल है दोनों साइड, इनकी लेंथ ऐड होगी. लेकिन सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 20 minus 3.5 plus 3.5 that is 20 minus 7 30. ये 20 बेटा कंप्लीट है, ये यहाँ तक नहीं है, ये आगे तक है. इट इज़ होल. सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 minus 7 meter that is 13 meter. And area of rectangle is length into breadth that is 13 into 7 इसकी breadth थी 91 meter square. एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स. सर्किल का एरिया होता है, हाफ सर्किल का एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर और दो हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर रह गया. रेडियस इज 7/2 सो 22/7 पाई की वैल्यू होती है और 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2. 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 1 11 ही कैंसिल हो गया. फिर 11 7 सा 77/2 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर आ गया. इसके बाद टोटल एरिया दोनों का निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को. सो 91 प्लस 38.5 दैट इज़ 129.5. अब पैरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो टोटल पैरीमीटर इज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पैरीमीटर ऑफ टू एंड्स. लेकिन यहाँ पर पैरीमीटर ऑफ जब आप रेक्टेंगल करेंगे तो उसमें से ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ माइनस हो जाएगी. रेक्टेंगल के पैरामीटर में ये काउंट नहीं होगा क्योंकि हमें तो केवल बाउंड्री लेनी है. तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में तो 2l + b निकालेंगे तो ये जो डायमीटर है सर्किल का वो माइनस हो जाएगा. सो वी गेट 2l + b माइनस 2 ऑफ डायमीटर जो कि 2r के इक्वल था. सो -4 इंटू r हो जाएगा 7/2 और ये हमारा सर्कुलर पार्ट का जो सेमी सर्किल हैं दोनों उनका पैरीमीटर है. तो 2 हो जाएगा और एक का सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पाई इंटू आर. सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/2. कैलकुलेशन में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ 20 इंटू 2 दैट इज़ 40 प्लस 22 एंड हेयर इट बिकम्स 14. सो यू गेट 48 meter is the perimeter of this figure. That's all for today. Thank you.